Hello everyone, I'm Nikita Sharma. Welcomes you all on Associate Talk Show. Firstly, a very happy International Women's Day to everyone. Celebrating Women's Day, it means to celebrate journey of a woman's life through her struggle, through her contribution, through her achievement and through her sacrifice. Just being a woman is a God gift. Origin of a child is a mother, a woman. That is a woman who shows a man what caring, sharing, loving is all about. A woman is the pillar of strength not only for her society but even though for her country also. Now, on the occasion of, I am very happy that I am going to announce the name of our today's special person. We have joined with Mrs. Manisha Pathak Soni ma'am, and it's my privilege to introduce you all with ma'am. Ma'am is presently serving as an additional Deputy Commissioner of Police Headquarters, Indore. Ma'am is 1998 batch police service officer. Under the leadership of ma'am, the Police Training College was declared as the Center of Excellence and also won the Union Home Minister Trophy for the best police training in India. Ma'am also received the National Level Green Heroes Award by TERI University and US Consulate General in Mumbai for the work done in the field of environment conservation. Ma'am has written 2 books, Sarthi Sathi and Apradho Ki Vaigyanik Vivechna. Also, for children, ma'am wrote a comic book, Achkan Chatkan. Ma'am has received several prestigious awards, Madhya Pradesh Grah Rajya Mantri Cup in 1991, Union Home Minister Commendation Disc 2014-15, Kendriya Grah Mantri Best Trainer Medal 2015-16, Shri K.F. Rustamji Award Param Vishishta Shreni Madhya Pradesh Prashasan द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक, कर्मवीर योद्धा पदक शासन द्वारा. We are honored to have such distinguished and honored guest ADCP Mrs. Manisha Pathak Soni ma'am with us for today's Women's Day special talk show. Please welcome ma'am. थैंक यू सो मच निकिता जी, आपने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया और मैं आज के इस मौके पर धन्यवाद भी देती हूँ आईपीएस एकेडमी के डॉक्टर मनीष पुंडलिक साहब, जो आपके एचओडी हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर्स के। उन्होंने ये एक अच्छी सोच रखी कि ये जो दिन है, ये खास दिन है महिलाओं का और इसके लिए हम आपस में ऐसे मुद्दों पर बात करें जो कि महिलाओं से संबंधित है। तो थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बस। Thank you so much, ma'am, for coming here and for your presence on this talk show. And ma'am, should I start our question answer round? Yes, of course, please. Yes, ma'am. So in today's question answer round, I have covered all the aspect of a woman's life, and we will be here to know something more from you. So ma'am, my first question is based on gender inequality. Like in our society, हम observe करते हैं मैम कि कहीं कहीं boys and girls equally treated नहीं होते हैं. कभी कभी किसी किसी घर में भी ये देखने को मिलता है मैम. मैम, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? या फिर आप ऐसी कौन सी बात बोलना चाहते हैं जिनसे लोग अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकें? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है जेंडर इनइक्वालिटी का। देखिए जो हम जेंडर की शुरुआत करते हैं या उसकी समझ की हमारी शुरुआत होती है, वो घर से ही होती है। तो घर में सबसे पहले माँ और पिता ही हमको ये सिखाते हैं कि एक लड़के को कैसा बिहेव करना है, एक लड़की को कैसा बिहेव करना है। तो मुझे लगता है कि अगर इस जेंडर इक्वालिटी को अगर हमको अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी। और आप और मैं, खास करके मैं तो जिस एज में हूँ, तो मेरी एक बच्ची भी है 15 साल की। तो जो पेरेंट्स हैं, जो आज की डेट में पेरेंट्स बन चुके हैं, उनको ये समझना होगा कि आने वाली पीढ़ी को उनको क्या ट्रेनिंग देनी है और जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनको भी ये समझना होगा कि सोसाइटी में हम जेंडर को इनइक्वल रख करके हम कभी भी डेवलपमेंट नहीं पा सकते। ज़ाहिर-सी बात है, जैसे आपको पीछे एक साइकिल भी दिख रही होगी। तो सारी दुनिया 2 चीज़ों के बेस पे ही चलती है। चाहे चिड़िया के 2 पंख कह लीजिए, चाहे साइकिल के 2 पहिए कह लीजिए, चाहे 2 हाथ की ताली कह लीजिए। तो जब 2 इक्वल चीज़ों का मेल होता है, तभी कोई खूबसूरत तीसरी चीज़ पैदा होती है। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी ह्यूमैनिटी के बेटर डेवलपमेंट के लिए
जेंडर इक्वालिटी तो मस्ट है। और ये हम देखते हैं कि कई मामलों में घरों में ही इसकी शुरुआत होती है और घर के बाद वो जो संस्कार हमारे लोगों में रह जाते हैं, वो फिर वर्क प्लेस पर दिखाई देते हैं, काम में दिखाई देते हैं। तो जिस बच्चे ने जैसी ट्रेनिंग अपने घर में, अपने स्कूल में ली होती है, फिर वही उसके वर्क प्लेस पे दिखती है। और वर्क प्लेस पे जो वुमेन का हैरेसमेंट होता है, उसके पीछे भी यही जो एक सोच होती है, सालों-साल में डेवलप हुई होती है, वो उसी का परिणाम होता है। तो अगर हम इसको शुरुआत से ही सुधार सकें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैम इसकी शुरुआत घर से ही होती है, तो बचपन से ही किसी बच्चे को अच्छे संस्कार दे, अच्छी सीख दे, ताकि वो बड़ा होकर इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करे। बिल्कुल, मैम मेरा लड़के को जैसे सेकंड, हम ये सिखाते हैं कि तू लड़की जैसा रो रहा है, लड़कियाँ रोती हैं, हाँ, रोना लड़कियों का काम है और तुझे जी, चूड़ी पहना देंगे क्या? तो ये चीज़ हमने लड़कों को शुरू से ही सिखाई और लड़कियों को हमने ये सिखाया कि तुमको छुप के रहना है, तुमको दब के रहना है, तुमको बहस नहीं करना है, तुमको अपने सपने नहीं देखना है। तो ये चीज़ें हम घर से ही गलत सिखा देते हैं, उस चीज़ को सुधारना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने मैम। आई थिंक जो लोग इसे सुन रहे होंगे वो इन्हें फॉलो करेंगे बिल्कुल। मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन भी आपने इसी में कवर अप कर लिया है, मैं उसके बारे में भी कुछ पूछना चाहती हूँ। मैम जैसे कि अधिकतर महिलाएं जो काम करते हैं, जो कि वर्किंग वुमेन्स हैं, कभी कभी वो हरासमेंट का शिकार होती है, ठीक है, वर्किंग प्लेस पर। कभी किसी के कहीं कहीं तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, बट कहीं कहीं ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। मैम तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? क्या प्रावधान दिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट की साइड से? वो कैसे अपनी आवाज़ को दूसरों मतलब ऐसे पहुंचा सकती है किसी लीगल वे में, ताकि उनकी सुनी भी जा सके और उन्हें उसका सॉल्यूशन भी मिले? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है क्योंकि अभी आप भी एक संस्था से जुड़ी हुई हैं और जो भी हमारी साथी इस प्रोग्राम को देख रही हैं, वो भी किसी न किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं या किसी ऐसे वर्क प्लेस पर हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह की माँग बहुत लंबे समय से थी, लेकिन पहले वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट के बारे में कोई अलग से लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन के नाम से एक मतलब एक गाइडलाइन दिया था जिसको विशाखा गाइडलाइन के नाम से हम सब जानते हैं और बाद में फिर ये कानून भी बन गया। तो इसको शॉर्ट में पॉश एक्ट भी कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये एक एक्ट है अपने आप में और ऐसी कोई भी महिला जो किसी भी संस्था में काम कर रही है, वो इस एक्ट के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। ऐसी कोई भी एजेंसी, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, जहाँ 10 से अधिक महिलाएँ काम कर रही हैं, उस हर एजेंसी को अपने यहाँ एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना कंपल्सरी है। और ऐसे सेक्टर जहाँ 10 से कम महिलाएँ काम करती हैं, उदाहरण के लिए घरेलू सेक्टर या कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ कम संख्या में लड़कियाँ काम कर रही हैं, तो वहाँ उन लड़कियों की शिकायत की सुनवाई के लिए जिले के कलेक्टर के अधीन एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, वो कमेटी फिर इसकी सुनवाई करती है। तो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह ये एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का होना कंपल्सरी है और वो कमेटी की ये ज़िम्मेदारी है, उस एक्ट में ख़ास करके एम्प्लॉयर की ये ज़िम्मेदारी बनाई गई है कि एम्प्लॉयर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे, जिसमें फीमेल सेफ होकर के अपना काम कर सके। और इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी की परिभाषा को बहुत विस्तार से बताया गया है। यानी इसमें ये होना ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट एम्प्लॉयी होगी तो ही उसको रेमेडी मिलेगी। वो टेम्परेरी एम्प्लॉयी भी हो सकती है, वो एड हॉक एम्प्लॉयी भी हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं है कि प्रीमाइसेस में ही हुए एक्ट के लिए ये रेमेडी मिलेगी। हो सकता है ऑन द वे या ट्रांसपोर्ट में कहीं कुछ ऐसा हुआ हो। तो बहुत विस्तार इस एक्ट में है, उसको देखा जा सकता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने ये एक्ट हमें बताया एंड आई होप हमारा जो वर्किंग प्लेस है यदि वो अच्छा होगा मैम, तो हम बहुत इफ़िशिएंसी से वर्क कर पाएंगे और आउटपुट भी अच्छा दे पाएंगे। तो मैम ये एक्ट जो आपने बताया आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट होगा बाकी लोगों के लिए भी जो इसकी तलाश कर रहे होंगे। मैम माई सेकेंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी तक हमने केसेस सुने हैं कि मारपीट होती है या एक स्लैप मार दिया जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। क्या सिर्फ पति की साइड से ये कर दिया जाना यही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, या ये भी कुछ एक बड़ा
एरिया है जो बहुत सारी चीजों को कवर अप करता है? बहुत आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ही रेलेवेंट है आज के समय को देखते हुए। पहले जैसे कि अभी एक एक्ट की बात हमने की, ऐसे ही बात करें कि पहले जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया गया था। सिर्फ़ धारा 498 ए आईपीसी में कवर होता था, वैवाहिक रिश्तेदारों द्वारा की गई प्रताड़ना। अब कोई महिला जिसकी शादी नहीं हुई है, ऐसी महिला कहाँ जाए यदि उसके घर के लोग परेशान करते हों। तो समय के साथ कानून बना और उसको घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम कहते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत ऐसी कोई भी लेडी, चाहे वो किसी भी उम्र की हो और चाहे उसे घर का भाई, पिता या उसका पति, मतलब कोई भी पुरुष यदि उसको सता रहा हो, जो कि किसी भी तरह से नातेदार हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो और एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। आप बात करें कि हिंसा क्या? तो हिंसा सिर्फ़ जैसे आप कह रहे थे कि एक स्लैप मार देना, तो सिर्फ़ मार देना, फिज़िकल मार देना ही घरेलू हिंसा नहीं है। इस एक्ट के अंतर्गत अगर हम देखें तो मानसिक प्रताड़ना को और आर्थिक प्रताड़ना को भी शामिल किया गया है। मान लीजिए कि कोई महिला अपनी वो को बहुत योग्यता रखती है और कोई पर्टिकुलर काम करना चाहती है और उसे काम ना करने दिया जाए, या फिर वो जो कुछ भी कमा के लाती है उसको छीन लिया जाए और उसको उसका उपयोग ना करने दिया जाए, या उसके बच्चे का ठीक से पालन-पोषण करने के लिए उसको मतलब जो आवश्यक राशि चाहिए या आवश्यक मदद चाहिए वो ना दी जाए, या उसको घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया जाए, ये सारा कुछ घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अच्छा, इट मीन्स मैम ये सिर्फ मारपीट या ऐसे फिजिकली टॉर्चर तक सीमित नहीं है, मेंटली टॉर्चर करना भी इसी के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, किसी लेडी को उसके बॉडी शेमिंग करना, मोटी है, काली है, भद्दी है या खूबसूरत नहीं है या कमा नहीं पा रही या ज़्यादा कमा रही है तो तुमको ईगो हो गया या उससे पैसे छीन लिए या उसकी शादी नहीं हो पाई, उदाहरण के लिए कोई कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती और उसकी एज ज़्यादा हो गई है, तो घर के लोग उसको इस बात पे सताने लग जाएँ कि तुम शादी नहीं कर रही हो तो तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, या तुम गलत हो। इस तरह की चीज़ें जो है ये सब कुछ घरेलू हिंसा के अंतर्गत है। और इसमें अच्छी बात ये है कि कई बार महिलाएँ ऐसा सोचती हैं कि हमें थाने नहीं जाना है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम में थाने में सीधे जाना भी आवश्यक नहीं है। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग में ही रिपोर्ट की जा सकती है। वन स्टॉप सेंटर हर शहर में होता है, वहाँ सीधे जाकर के वहाँ अपनी बात रखी जा सकती है और वहाँ से सीधे इसको कुटुंब न्यायालय में या फैमिली कोर्ट में पेश किया जाता है। तो हम जो हमारे देश में जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है, उसमें लड़कियाँ थाने में जाने में और नॉर्मल कोर्ट में जाने से घबराती हैं या अवॉइड घबराहट है। करती हैं। तो हम्म। बेहतर है कि हम इस एक्ट के अंतर्गत जो वन स्टॉप सेंटर बने हैं या जो विधिक सहायता केंद्र भी हैं, उन पर जाकर के हम अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, मतलब मैम लेडीज़ लोगों के लिए, विमेंस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की साइड से। एंड मैम आपने एक इसमें और पॉइंट क्लियर किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मैरिड वुमेन्स के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी ये होता है। जी, जी। कुछ मामलों में यस। तो बल्कि कुछ केस लॉज़ में जो यदि लिव इन में भी कोई पार्टनर रह रही है, तो उसको भी इसमें कंप्लेंट करने का राइट है। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am, for this answer. Now moving towards the next question. My next question is, ma'am, based on women empowerment. मैम जैसे हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, तो मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे एक नारी अपने आप को सशक्त कर सकती है? देखा जाता है तो सोसाइटी की साइड से ही, कभी कभी घर की साइड से ही एक लेडी को डोमिनेट कर दिया जाता है मैम, वो अपनी बात खुल के नहीं रख पाती है, वो अपनी इच्छाएं खुल के, अपने सपने खुल के पूरे नहीं कर पाती है। तो मैम कैसे वो अपने आप को एम्पावर करे? पहले तो शुरुआत खुद से होगी, तब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। पहले एक अकेली नारी अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकती है, एम्पावर्ड कर सकती है? अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि अकेली नारी कैसे कर सकती है। पर देखिए नारी ही तो सब पर भारी है। जीवन को देने वाली ही नारी है और जो यस आगे मैम। आने वाली पीढ़ी है उसको पालने वाली और उसको बड़ी करने वाली भी नारी ही है। तो अगर मान लीजिए कोई छोटी बच्ची है, वो अपनी कोई सपने देखती है और उसको पूरा करना चाहती है, तो ये माँ की पहली ज़िम्मेदारी है कि उसने जो जो कुछ भी भुगत लिया, वो आगे कम से कम उसकी अगली पीढ़ी को ना भुगतना ना पड़े, उसको भुगतना। तो कम से कम उसके सपने देखने दिए जाएँ
और अगर हम एक तरह से अगर अपने प्राचीन चीज़ों को याद करें, भारतीय परंपराओं को याद करें, तो हमारे यहाँ देवियों की पूजा की परंपरा रही है। पर हुँ, देवियाँ वो सामान्य स्त्रियाँ नहीं होती थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि हर देवी का अपना एक खास हथियार होता था या शस्त्र होता था। उदाहरण यस के मैम, लिए माँ सरस्वती हैं जो कि ज्ञान की देवी हैं, या माँ लक्ष्मी हैं जो कि धन की देवी हैं, धन की या देवी। माँ दुर्गा हैं जो कि शक्ति की देवी हैं। तो इससे ही हमको ये समझना होगा कि स्त्री की उपासना तभी होगी या आपकी कद्र तभी होगी जब आपके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होगी। तो आप अपने अंदर क्वालिटीज़ को पैदा करें या उसका विकास करें। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बड़ी सरकारी नौकरी कर लेंगे तो ही सफल हो जाएँगे, या हम कोई बड़ा बिज़नेस कर लेंगे तो ही सफल हो जाएँगे। बहुत सारे सफलता के पैमाने हैं और बहुत सारे ज़िंदगी में हमको साधन भी हैं। अब ये बात रही कि मैं जो सपना देखती हूँ वही पूरा करना है, तो ये तो आप ये समझो कि ऐसा तो हर पुरुष के साथ भी नहीं होता है कि उसने जो हाँ, सपना देखा वो पूरा हो गया। तो हुँ, हुँ, ये तो मनुष्य जीवन में ये सब उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं कि हम सपने देखते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं, पर उनको कुचलने वाला कोई नहीं होना चाहिए हमारे परिवार में, और उसके बच्ची के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में हमारी फैमिलीज़ को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और बीइंग अ वुमन, हम सब आस-पास अपनी जितनी लड़कियाँ हैं, जितनी महिलाएँ हैं, उनको जो भी मदद हम कर सकें, उनके डेवलपमेंट में, उनके फ़ील्ड में, वो हमको करना चाहिए। ये हमारा रियल कहना चाहिए कि योगदान होगा इस फ़ील्ड में। यस मैम। आपने बिल्कुल सही कहा मैम। हमें शुरुआत तो खुद से करना है, लेकिन अपने आप को मजबूत और खुद को थोड़ा-सा एक क्वालिटी को डेवलप करना भी पड़ेगा हमें। मैम, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेस्ड है सेफ्टी टिप्स, मतलब आपसे कुछ सेफ्टी टिप्स लेने के लिए मेरा एक क्वेश्चन किया है। जैसे कि जाते हैं, कुछ गर्ल्स जाती है, हम भी यदि देखें तो वी आर वेरी फ्री, ठीक है, बट को कभी कभी हमें जाने में सोचना पड़ता है कि हम जाए या नहीं जाएं घर से बाहर, टाइम क्या हो रहा है, हम निकलने के पहले टाइम देखते हैं, बट कभी कभी कुछ सिचुएशन आती है जब हमें निकलना पड़ता है। और मेनी केसेस भी हमने देखे हैं जब कुछ ऐसे सीन्स क्रिएट हो जाते हैं कि गर्ल्स कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करती है तो वो किसी हादसे का शिकार भी बन जाती है। तो मैम, ऐसे मौके पे आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो गर्ल्स फॉलो करें तो ऐसे कुछ सीन्स को हम अवॉइड कर पाएं? इस मामले में मैं आपको थोड़ा-सा इस बात पे प्रकाश डालना चाहूँगी कि जो हम सेफ्टी की बात करते हैं या जो हम डर अपने अंदर पालते हैं, एक्चुअली उस डर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आंकड़ों को देखें, जो हम रोज़-बरोज़ देखते हैं यहाँ पुलिस में रहते हुए, तो जो चाहे रेप के केसेज़ हों, चाहे वायलेंस के केसेज़ हों, उसमें 98% से ज़्यादा लोग नोन होते हैं। मतलब या तो कोई घर का व्यक्ति होता है, या आपका कोई रिश्तेदार हम्म, होता है, या आपका कोई मित्र होता है। तो हम्म, डर तो कहाँ, मतलब आप तो सड़क के लिए डर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल डर तो आपका घर पे या आपके आस-पास करते है। हैं। तो हम्म, उसके लिए सबसे ज़्यादा सतर्क रहना, आपको फिज़िकली बहुत सतर्क रह के बाजी नहीं करना है उस व्यक्ति से, जिसके साथ आप रह रहे हो। आपको अपने अंदर ही उस डर को जीतना होगा, जिसके कारण आप उस व्यक्ति के शोषण का शिकार हो रहे हैं। वो आपको सड़क में नहीं परेशान कर रहा है, वो व्यक्ति आपको घर में कर रहा है, वो आपको रिलेशनशिप में परेशान कर रहा है, वो हो सकता है कि आपको फ़ोन पे धमका रहा हो। अब ये बात तो हुई हमारे घर की। उसके बाद जब रोड पर हम चलते हैं तो हम सब, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर किसी को अपनी सुरक्षा और सावधानी का ध्यान तो रखना ही होता है। जैसे हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं, ऐसे ही पालन सुरक्षा करते के कुछ नियम पालन करने चाहिए। जब नई बच्चियों को बोलो कि आप ये ध्यान रखो, तो उनको लगता है कि सिर्फ़ उनको ही बताया जा रहा है। हैं। लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? तो ऐसा हाँ, नहीं है, लड़कों को भी हम सिखाना चाहते हैं और सिखाते भी हैं। पर हम सबको अंधेरे से डर सबको लगता है, मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल इस चीज़ को शो नहीं करते। तो शो हमको नहीं अपने करते। डर को कभी शो नहीं करना है, और हमेशा अपने आप को ऐसे, जिस भी वातावरण में हम हैं, जिस इलाके से गुज़र रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा ऑब्ज़र्वेंट रहना है, कि आस-पास क्या घट रहा है, कहाँ लाइट है, नहीं है। अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने यदि कोई टैक्सी कॉल की है, तो उस टैक्सी का नंबर अपने घर के लोगों को मोबाइल से बता दें। टैक्सीज़ भी आजकल वेरिफाइड हो रही हैं, पुलिस द्वारा वेरिफाइड टैक्सी का स्टिकर जैसे ऑटो में इंदौर में लगाया गया है। तो उस स्टिकर को देख लेंगे आप, तो आप थोड़ा-सा, आपको राहत होगी कि ये नोन है और इसका वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा किया गया है। इसी तरह एक सिटीज़न कॉप एप्लीकेशन है इंदौर पुलिस का,
जिसमें कि आप 4 नंबर सेव कर सकते हैं आपके, और आप किसी भी अगर ऐसी कंडीशन में है जहाँ से आप मदद माँगना चाहते हैं, तो उस ऐप के ज़रिए आपका तुरंत मैसेज उन चारों नंबरों को हो जाता है। या फिर कोई अन्य व्यक्ति, मान लीजिए कि एक लड़की कहीं परेशान है और कोई अन्य व्यक्ति देखता है और चाहता है कि मैं अपना नाम ना बताऊँ और उस लड़की की मदद करूँ, कंट्रोल रूम को खबर करूँ, तो ये सिटीज़न कॉप के ज़रिए ये भी संभव है। इसी तरह मध्य प्रदेश पुलिस का एक एप्लीकेशन है एमपी ई कॉप, उसके ज़रिए भी हम अपनी लोकेशन को सेव कर सकते हैं, या अगर उस लोकेशन से उसमें इतना तक है कि आप अपना एक, अगर आपने एक पाथ डाल दिया है कि इस पर्टिकुलर पाथ पर हम जा रहे हैं और उसके बाद आप उस पाथ से डेविएट होते हैं, तो भी अलर्ट आपके घर पे पहुँच जाता है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अंधेरी-सुनी इलाकों से हमको बचना ही चाहिए, वो तो मेल को भी बचना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फीमेल अकेले को हुँ। बचना है। तो ये तो बेसिक जो सिक्योरिटी है वो आदत हमको डालनी पड़ेगी। अब साइबर सिक्योरिटी जो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसमें भी यही बात है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे कि हम अपने घर में हमने कहाँ गोल्ड रखा हुआ है, ये हम हर जगह जाकर तो नहीं बताते हैं। नहीं बताते हैं। लेकिन साइबर वर्ल्ड में क्या होता है कि हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे डालते हैं। अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, अपने रिलेशंस डाल देते हैं, अपने सारे फ़ोटोज़ डाल देते हैं, अपना सब कुछ कहीं घूमने जा रहे हैं, जाने के पहले ही डाल देते हैं कि हम जा रहे हैं। तो अगले को जो प्रेडेटर्स चारों तरफ घूम रहे हैं, उनको ऑलरेडी आपके बारे में पता चल जाता है। पता तो है। हमको वो चीज़ें अवॉइड करनी है अपना डिटेल देने का, और जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे हो, उसके जो बेसिक प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, उसको ज़रूर पढ़ें, रेगुलर उसको अपडेट करते रहें। तो चीज़ों को यूज़ करें पर सावधानी के साथ यूज़ करें। यही मेरा कहना है। मैम जैसा कि आपने बताया बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की साइड से हमें दी गई है और आपने इस चीज़ को साइबर सिक्योरिटी से भी रिलेट किया है और आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताया है कि हमारे डर को हमें कभी किसी के सामने शो नहीं करना चाहिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है मैम हम सब के लिए। तो थैंक यू मैम इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम मेरा बेस्ट, डाउरी इज़ प्रोहिबिटेड इन आर इंडिया, ठीक है मैम, बट फिर भी मैम हम न्यूज़पेपर में देखते हैं तो कई महिलाएं होती है जो कि इससे प्रताड़ित की जाती है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को हार्म करती है। स्टिल इट इज़ प्रोहिबिटेड, बट फिर भी लोग कुछ इसकी डिमांड करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और सफ़र करती है एट लास्ट वो महिला ही, वो लेडी ही सफ़र करती है। तो मैम इस टॉपिक के लिए, इस पॉइंट के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिनके लिए किसी महिला की एट लास्ट कंडीशन ऐसी होती है, रिजल्ट उसकी लाइफ का कुछ ऐसे निकल के आ रहा है? डाउरी रियली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में। और आप देखें समय के साथ इन चीज़ों में चेंज आ रहा है। जो आज से पहले जो शादियाँ होती थी उसका और उसके जो परिणाम होते थे वो अलग होते थे, अब थोड़े से डिफरेंट हैं। अब जो मॉडर्न गर्ल्स हैं, जो कॉलेज की गर्ल्स हैं वो समझती हैं इस बात। तो डाउरी एक्चुअली मतलब मुझे लगता है कि क्यों देते हैं पेरेंट्स हमारे? वो इतने मजबूर होते हैं अपनी बच्ची की शादी करने के लिए कि उसको कहीं न कहीं किसी न किसी के घर में भेज दिया जाए। तो क्या शादी इतनी ज़रूरी है? मुझे लगता है कि लड़की की पर्सनैलिटी अच्छी बनाना और उसको अपना जीवन अच्छा बनाना, पहले ये टारगेट पूरा होना चाहिए। लड़की जब अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपनी ज़िम्मेदारी खुद समझ सकेगी, तो जो शादी भी उसकी होगी, उसमें वो अपनी शर्तों के साथ जी सकेगी, या उसका एक बेसिक उसको जो सम्मान है, वो उसको मिलेगा। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग शादियों का आधार कुछ और रखते हैं। लड़का भी ऐसा चाहिए होता है, वैसा चाहिए होता है, तो उस लड़के को पाने के लिए किसी भी हद तक माँ-बाप गुज़रते हैं। तो ये भी माँ-बाप को समझना चाहिए कि बच्ची की शादी हम क्यों कर रहे हैं? हम बच्ची को एक अच्छा जीवन देने के लिए कर रहे हैं, ना कि उसको इस घर से पैसों के साथ निकाल देने के लिए। और जिस घर में बच्ची आती है, उस घर को भी ये समझना होगा कि उस घर की माँ भी एक समय ऐसे ही कभी आई थी। उसकी हम्म। दादी भी ऐसे ही कभी आई थी। तो जो जो भी महिला आई है वो अपने जड़ से उखड़ करके आपके पास आई है। एक पौधा जिसको जड़ से आप उखाड़ दीजिए तो उसको जमने में समय लगता है, और जमाने के लिए आपको पोषण देना पड़ता है। उसको मिट्टी, पानी देना पड़ेगा, उसको केयर करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही पौधे के जैसे वो लड़की हमारे घर आती है, तो उसको हमको केयर करना चाहिए। और यकीन मानिए मैम कि जो दहेज के बेस पर हुई शादियाँ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा दिन तक अच्छी नहीं टिकती।
ना तो लड़की के मन में परिवार वालों के प्रति प्यार होता है और ना लड़के वालों के मन में लड़की के लिए सम्मान होता है। तो ये देर सवेर ये शादियाँ टूटने के कगार पे आती हैं या फिर दोनों ही पक्ष दुःख के साथ या तनाव के साथ ढोते हैं रिश्ते को। पर जिनकी बच्चियाँ छोटी हैं उनको ये समझना होगा कि बच्चियों को आप अपने पैरों पर खड़ा कराइए। शादी जीवन का एक हिस्सा मात्र है, वो सब कुछ नहीं है, कि शादी हो गई और जीवन खत्म हो गया या शादी ही जीवन का सबसे बड़ा टारगेट था। इस चीज़ को हुँ। सोच के आप मत चलिए। आप शादी को जीवन का एक पार्ट मानिए और आप जिस दिन ऐसा करने लगेंगे, उस दिन हम मेरे ख्याल से हम दहेज पर नियंत्रण पा सकेंगे। और उसके बाद हमको थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा कि हम एक खास वर्ग में या एक खास इलाके में ही एक खास तरह के व्यक्ति के ही साथ शादी करना चाहते हैं। जबकि शादी तो 2 मनुष्यों के साथ-साथ 2 परिवारों का मिलन भी है, पर परिवार पहले वो 2 सोल्स का मिलन है। तो जब तक हम वो सोल्स को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो शादी सर्वाइव नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि दहेज तो हम सबको खुद ही अपने घरों में उसको वो करना पड़ेगा, मतलब उसका विरोध हमको अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा, हम सबको। मैम आपने बहुत यहाँ पर तो बहुत ही इम्प्रेसिव पॉइंट आपने इंक्लूड किया है मैम कि शादी जो है वो दो सोच का मिलन है। परिवार और लोग तो अलग है, पहले सोच आती है। और यहाँ पर जो आपका मैसेज है वो भी बहुत ही ज़्यादा खास है मैम कि हमें शादी के वक्त दहेज देने से अच्छा है कि उस लड़की को कैपेबल बनाना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, ताकि वो अपनी बाकी की लाइफ रिस्पेक्टफुल जी सके। जी। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन जेंडर डिटर्मिनेशन पर है। जैसे कि अभी बीच में बहुत ज़्यादा रेशो गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में डिस्टर्ब हो गया था, उसी के अराउंड फिर ये बैन भी हुआ था जेंडर डिटर्मिनेशन। अदरवाइज लोग पहले ही जेंडर डिटरमाइन करते थे, तो गर्ल्स का रेशो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। मैम यहाँ पर भी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जीवन 2 चीज़ों के तालमेल से ही बनता है। तो मेल और फीमेल दोनों चाहिए इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, घर को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमको जो जो लोग आज लड़की को पसंद नहीं करते, वो कल बहू कहाँ से लाएँगे, ये उनको खुद को ही सोचना होगा कि बच्चियाँ तो संसार की बड़ी खूबसूरत चीज़ होती हैं। अगर हम उनको इग्नोर करेंगे या उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आगे ये दुनिया खूबसूरत नहीं रहने वाली है। अब बात रही जेंडर डिटर्मिनेशन की, तो ये अल्टीमेटली ये भी कोई ना कोई कमज़ोर महिला होती है, जो कि अपने परिवार वालों के दबाव में आकर के ऐसा काम कराती है। तो हमको वहाँ भी अपने अंदर वो साहस जगाना होगा कि अगर हमारी कोई प्रेगनेंसी है, तो उस प्रेगनेंसी को हम टेस्ट ना कराएँ और बेहतर है कि जो हमारे पास 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, उसमें ही हम संतुष्ट रहें। बच्चा है, बच्चियाँ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कितने मतलब कितने ही उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ या आप सब जानती हैं कि महिलाओं ने इतने अच्छे-अच्छे काम किए हैं जो बहुत सारे पुरुष भी नहीं कर पाते हैं। चाहे यस वो मैम। देश को लीड करने से लेकर के हमारे रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या समाज सेवा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो उसमें महिला कहीं पीछे नहीं रही। सिर्फ पीछे कहाँ रह जाती है वो उनका जब परिवार साथ नहीं देता। तो ये तो हमारे पेरेंट्स को ये समझना चाहिए या जो भी कपल्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि बच्चियाँ और बच्चे सब समान हैं। जिसको आप जैसी ट्रेनिंग देंगे, वो वैसे ही विकसित होगा। तो आपका ये पौधा है, इसको आप जितना पोषण देंगे, जितना नरिश करेंगे, उतना वो स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल होगा। मीन्स वही हमें घर से ही स्टार्टिंग करना है, हर चीज़ की पहल हमें हमारे घर से करना है। एज अ पेरेंट्स हमें हमारे बच्चे को हर अच्छे संस्कार देना है, अच्छी बातें सिखाना है। मैम नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि चाइल्ड मैरिज भी बैन है हमारी इंडिया में, है ना। हम चाइल्ड मैरिज को भी अपोज करते हैं, बट फिर भी कभी कभी पुलिस को जाना पड़ता है, रुकवाना पड़ता है। चाइल्ड मैरिजेस होती है वहाँ पर लोगों को समझाना पड़ता है, अलग बिठाना पड़ता है। मैम यहाँ पर भी मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगी ताकि वो मैसेज फिर कुछ लोगों तक पहुँचे और जो लोग ऐसे कभी इन पॉइंट्स में इन्वॉल्व होते हैं उनकी सोच बदले। इसके लिए तो मैं कबीर का दोहा मुझे याद आता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो जब ऋतु आती है, जब मौसम आता है, तभी फल आता है पेड़ में और वही फल अच्छा होता है। अब आप बच्चे की शादी या बच्चियों की शादी 13-14 साल में, 15-16 साल में कर देंगे,
तो उससे जो कोई भी पौधा बनेगा या जो भी फल आएगा वो उसके जीवन के लिए एक कष्ट ही होगा। तो जो मैं अभी पहले क्वेश्चन में आपसे दहेज वाले क्वेश्चन में मैं आपसे बात कर रही थी कि शादी कर देना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे पेरेंट्स बना देते हैं। तो ये जो लड़कियां या बच्चियां हैं उनको ये समझना पड़ेगा या हमको ही जाकर के ये समझाना पड़ेगा कि शादी जीवन का उद्देश्य मत बनाइए। आप जीवन बहुत बड़ी चीज है, उसको जीने के लिए आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी होगी और जिस दिन ये स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिस दिन आपके जीवन का एक कोई टारगेट या कोई लक्ष्य मिलेगा, वो लक्ष्य बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, लक्ष्य छोटे-छोटे भी हो सकते हैं। पर जब आपके पास एक लक्ष्य होगा तो आप ये शादी के जो एक चंगुल है या जो एक कहना चाहिए एक पैरामीटर है कि 15 साल में शादी कर दो, उसको चाहे दहेज दे के कर दो, चाहे जैसे भी कर दो, पर लड़की को घर से विदा कर देना चाहिए। इस पैरामीटर से हमको बाहर लाना पड़ेगा। अब चूँकि हम सब तो पढ़े-लिखे समाज में रहते हैं या एक बड़े शहर में रहते हैं, तो यहाँ ये चीज़ें कम देखने में आती हैं। पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आती हैं। ज़्यादा देखने आते हैं। तो जहाँ भी लोग हमारे संपर्क में आएँ, ऐसे लोग, तो उनको हम अवेयर कर सकते हैं। हम सभी जो पढ़े-लिखे लोग हैं या जो हम समझदार तथाकथित समझदार कहिए, समझदार लोग हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे संपर्क में जितने लोग आएँ, उनको हम ये बताएँ कि ये सब गलत है और इसके लिए बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम भी पुलिस के द्वारा निरंतर चलाए जाते हैं, कम्युनिटी आउटरीच भी किया जाता है। इवन क्षेत्रीय इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें भी पुलिस घर में जाकर के लोगों को समझाती है। महिला बाल विकास विभाग भी इसमें काफ़ी सारी योजनाएँ उनकी चालू की गई हैं और बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना या सुकन्या समृद्धि योजना, ये सरकार ने इसीलिए शुरू की है कि बच्चियों की केयर करना है, उनको ज़बरदस्ती कहीं और भेज देने की तैयारी नहीं करना है। डेफिनेटली मैम, डिफरेंट पॉइंट्स आपने जो यहाँ पर इंक्लूड किए हैं हमारे इस आंसर में, वो तो बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैम, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा थोड़ा इससे और रिलेट करता है कि कुछ लोग बच्चियों को पढ़ाना इंपॉर्टेंट समझते नहीं है। फीमेल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक हम किसी सिटी के डेवलपमेंट को उसकी लिटरेसी से मेज़र करते हैं, और यदि फीमेल है तो जैसे कि हमें ये भी पता है कि नारी शिक्षित तो समाज शिक्षित। अगर फीमेल लिटरेट है तो ऑलमोस्ट उसके सराउंडिंग की चीज़ों को वो लिटरेसी से फुलफिल कर ही देती है। बट मैम, कुछ लोग जैसे कि इस दायरे में इसको नहीं इम्पोर्टेंट समझते हैं, ठीक है, तो मैम आप उनके लिए अगेन यहाँ पर कुछ एक छोटा सा पॉइंट, ताकि कोई बात उन तक पहुँचे एंड वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज करें। लिटरेसी तो मुझे लगता है कि बेसिक एजुकेशन हर व्यक्ति का हक है। जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया है, तब से ये तो अनिवार्य ही हो गया है कि 14 साल के बच्चे तक की सभी की शिक्षा होनी है। इसमें होता ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में या जो ऐसे परिवार हैं जहाँ अर्निंग के सोर्सेस कम है, वहाँ वो बच्चे को हो सकता है कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएँ, बच्ची को सरकारी स्कूल में पढ़ा दें या बच्ची को पढ़ाएँ तो लेकिन उसको घर पे इतना काम उसके साथ में लाद दें कि वो दूसरे मतलब बच्चों के समान पढ़ ही ना पाए। एजुकेशन मतलब बेसिक एक एकेडमिक एजुकेशन हो जाए या स्कूल में एडमिशन बस हो जाए, इस तरह का देखने में आता है। लेकिन अब यहाँ भी मुझे लगता है कि ये शिक्षा विभाग या प्रशासन तो बहुत प्रयास करता है कि बच्चे बिल्कुल भी ड्रॉप आउट ना हो। इवन हम भी पुलिस के साथ पुलिस और महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग मिलकर के एक स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम भी हम लोग रन कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में ये स्कीम है। तो जो ड्रॉप आउट हुए बच्चे होते हैं, उनको भी प्रेरित करके वापस स्कूल से जोड़ने का प्रयास हम करते हैं। अब इसमें भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है परिवार की ही, कि परिवार को ही इस बात में अपने आप में सुधार करना है। और जो बच्ची है, यदि हमसे वो संपर्क में आए या हम उसको समझा सकें हम सभी, हमारे खास करके आस-पास ऐसी कई कामगार महिलाएँ होती हैं जो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा पा रही होती हैं। तो उनको उन तक ये मैसेज हमको ये कराना चाहिए कि अगर एजुकेशन होगा, तो बच्ची का जो विकास है वो ज़्यादा अच्छा होगा और उसकी जो अभी शादी की दिक्कत आती है लोगों को, वही मैं बात आऊँगी उसी बात पर कि दहेज और दुनिया भर की चीज़ें, वो इसी कारण तो है कि हम बच्ची को ग्रूमिंग कर ही नहीं रहे हैं। हम बच्ची को समाज में खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं कर रहे हैं। हम बच्ची को एक बोझ की तरह उसको कुछ दिन हमारे कुछ साल हमारे परिवार के साथ कट जाएँ
और उसके बाद उसको दूसरे घर भेज दिया जाए, उसी मानसिकता के साथ बड़ा कर रहे हैं, जो कि गलत है और जिसके कारण ही ऐसी कुप्रथाएं जन्म लेती हैं। या तो हम अर्ली एज में शादी कर देते हैं या दहेज के साथ शादी कर देते हैं, और चूंकि वो एजुकेटेड नहीं होती या वो सफिशिएंट एजुकेटेड नहीं होती, तो वो फिर शोषित होती है। और पहले तो वो शोषण को पहचान ही नहीं पाती, उसको लगता है कि यही मेरी लाइफ है, मेरे मार खाना मेरी जिंदगी का हिस्सा है, या यही मेरी नियति है, या मैं महिला हूं तो मुझे तो मार खाना ही है। तो ये ट्रेनिंग हमको अपने परिवारों से देनी चाहिए बच्ची को। और बच्ची को कभी भी हमको एक ऐसा उसका जो पालन पोषण हम करते हैं, वो ऐसा करें कि वो अपने आप में मजबूत बने। उसको पढ़ाई लिखाई के साथ उसको दूसरे जो स्किल्स हैं वो भी उसके डेवलप कराएं, और ताकि वो एक अच्छी इंसान भी बने, और कल को उसको कुछ अर्न करने के लिए कुछ जरूरत हो, कुछ काम करने की, तो एक एक्स्ट्रा उसको कुछ ना कुछ आता हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, या और भी कंप्यूटर ट्रेनिंग, कुछ भी तरह की स्किल एजुकेशन, वो भी उसके साथ में उसको होनी चाहिए। तो एजुकेशन तो बेसिक लाइफ का हिस्सा है, मतलब एक एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने की प्रोसेस है वो। तो वो हम यदि अपने बच्ची के साथ नहीं करेंगे तो हम ये मानवता के प्रति अन्याय करते हैं। तो मुझे लगता है इसको तो सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको ये चीज पहुंचानी चाहिए और उनको शामिल करना चाहिए इसमें। Yes, ma'am. I think your message will be impactful for everyone. And now, ma'am, this is not my last question, but this is a message from your side. We all want to hear this. Ma'am, what message you want to drop here for every woman who is listening this program, and the person who are listening this and have women in their life in form of their mother, daughter, sister, anybody. So ma'am, what message you want to give here for everyone on the occasion of Women's Day? Yes ma'am. वुमेन्स डे के ओकेजन पर खास करके तो सबको ये कहना चाहती हूँ कि पूरे 365 दिन ही महिलाओं के हैं। और दूसरा, स्त्री पुरुष या इस जीवन में आने वाला हर व्यक्ति, हम सब एक आत्मा है, हम एक सोल हैं, और हमको एक बॉडी का रूप मिला है। सिर्फ उस बॉडी में हम एक सोल लेकर के आए हुए हैं इस धरती पर। तो हम उस बॉडी के आधार पर सोल को डिटरमाइन ना करें, सोल की प्योरिटी पर ध्यान दें, ह्यूमैनिटी पर ध्यान दें, सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दें, स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दें। तो निश्चित तौर पर हम ये जो दुनिया भर की कुप्रथाएं या चीजें हमने अपने आसपास घेरे बना रखे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कर रखी है, लड़की ऐसी, लड़का ऐसा, महिला ऐसी, पुरुष ऐसा, या थर्ड जेंडर ऐसा, ये सब चीजें हमने अपने आप गढ़ी हुई है। प्रकृति ने हमको एक मनुष्य के तौर पर जन्म दिया है, तो वो जो मनुष्य होने के नाते जो गुण हमारे पास हैं, उन गुणों को विकसित करना चाहिए। हम बार बार लड़कियों को ये समझाते हैं तुम कमजोर हो, कमजोर हो, वो बिल्कुल कमजोर नहीं होती। अगर आप मेडिकल साइंस की बात भी करें, तो पैदा होते समय में एक फीमेल चाइल्ड का जो इम्यूनिटी है वो मेल चाइल्ड की तुलना में ज्यादा होती है। तो कुछ प्रकृति ने भेद किए हैं, वो प्राकृतिक भेद प्रकृति को आगे बढ़ाए रखने के लिए या आगे विकसित करने के लिए है। लेकिन जो भेद हम समाज में कर लेते हैं, ये सर्वथा गलत है। इनको हमको समझना होगा, और हमारी जो बच्चियां हैं, जो भी लड़कियां महिलाएं इसको सुन रही हैं, उनको अपनी साथ की अन्य महिलाओं के लिए ताकत बनना है। जो लोगों ने ये हम सबके दिमाग में डाल रखा है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हमको डाल रखा है। क्योंकि हमारी जो सास होती है, एक ननद होती है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस सोच के साथ ही महिला घर में जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। पर वो समय जो शुरुआती दौर में मानसिक तनाव के साथ ही वो रिश्तों की शुरुआत होती है। तो हमको वो चीजों को दूर करना है महिलाओं। और जो पुरुष हैं हमारे, उनको ये समझना होगा कि हम ये दावे के साथ ये कहते रहते हैं तमाम कि महिलाएं असुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं। तो इसकी असुरक्षा के पीछे कारण कौन है? पुरुष ही है। तो वो कौन पुरुष है? वो हमारे आसपास ही कहीं बैठे हुए हैं, या हम में से ही कोई लोग हैं। यदि हम ये दावा करें या हम ये आंकड़ों की बात करें कि भाई 50% महिलाएं जो है वो किसी न किसी क्राइम का शिकार हो रही हैं, तो कोई एक या दो पुरुष तो नहीं कर रहे हैं, उसको भी पुरुषों के संवर्ग का 50% हिस्सा उनको प्रताड़ित कर रहा है, तो वो भी तो हमारे बीच में ही कहीं है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनको समय रहते ठीक कराएं, चाहे उनको काउंसलिंग के थ्रू ठीक कराएं, या उनको उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करके ठीक कराएं, या उनको सजा दिला करके ठीक कराएं। तो अल्टीमेटली ये सोसाइटी हम सब की है,
मेल फीमेल सभी के डेवलपमेंट के लिए हमको प्रॉपर स्पेस इसमें देना ही होगा, तभी हम एक सस्टेनेबल सोसाइटी का गठन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for this beautiful message. You cover almost every aspect of a woman life, and whatever topics I arise here in this show, you relate that topics very beautifully with each other. So thank you so much, ma'am, for being here, for sparing time with us, for your presence, and for sharing your valuable knowledge with us. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And have a good day, and wish a now very it's happy time. Women's Day. Thank you so much, ma'am. And it's a special wish from my side that Happy Women's Day to you, ma'am. Thank you. And God ma'am, bless. and ma'am, now it's time to present award of honor to you. Oh, so nice. Thank you so Yes, much. ma'am. Thank you so much. It's lovely. This is for you, ma'am. This is virtually, but we will be there and we will give you this physically also I will there with my team. Thank you so much. You are always welcome. Thank you. Have a good day. Yes, ma'am. So thank you so much, ma'am, for the session, for this question answer round, and for enlightening us with your valuable knowledge. And now for the audience, it's time that if you have any doubt regarding the question and answer session, you can simply mail us. We are displaying our mail ID on the screen. You can mail your question and your queries. We will respond you soon. And if you want such type of videos again on different topics, don't forget to like and subscribe our channel. Thank you so much.